Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this series of lecture of mechanics of solid. Today, inshallah, we will be discussing the response of material under different sets of monotonic loading. So I hope the previous four lecture, you have found them interesting and your learning process is going smoothly. And inshallah, this new lecture, this is a very interesting topic as well. So let's jump into the lecture and start exploring. So before discussing, exploring the knowledge on the response of the material, I think it would be very essential, and it is very essential to discuss the response first. What exactly is the response? So as far as the response is concerned, the design of machine and structure, because that's what being engineer we do. Normally we design structure, and the mechanical engineer, they design machine as well. So why do we design? We design so that they function properly. Because every structure is built for a certain purpose. If you are building a house, if you're building a school, if you're building a hospital, so any structure is built for a purpose. So we'll have to ensure that the purpose that it has been built for, it serves that purpose. So what understanding do we require for design of those structure? So we require to understand the mechanical behavior of the material that we are using in the construction of those material, be it the concrete, whether it's the steel, because normally in the subcontinent in Pakistan we construct with the reinforced concrete structure. So usually the material that we need to understand is the concrete as well as the steel. So I would be spending most of the time in today's lecture. We will be discussing inshallah the steel, the stress strain diagram of the steel. And then inshallah in the next lecture we will be discussing the concrete, and then when we would have understood all this concrete and steel in detail, then I think you would be in a position to, if a stress strain diagram has been given to you, then you would be in a position to interpret that diagram, that what exactly those points, what exactly those curves, what exactly the ups and downs of those diagram are telling you. So that's why I would be spending more time in today's lecture in discussion of steel. And then the next lecture we will be discussing the concrete, and then inshallah we'll be spending very little time on other material like aluminium, wood and rubber, because those material are very rarely used and in very limited quantity. But as far as this concrete and steel are concerned, they are very widely used and very extensively used in our construction around. So we need to understand the mechanical behavior of the material that are being used. So what is the mechanical behavior? Because there can be the chemical behavior as well, because if your material is being exposed to a certain chemical, then you need to know the chemical responses of that, you test the steel for the corrosion as well, because this is sort of a chemical reaction. So but as far as the mechanical behavior is concerned, so mechanical behavior involves the testing under the forces, how exactly the material would behave when under the influence of the forces, be it the tensile force, any sort of forces that can occur on a structure. So we will be discussing the mechanical behavior of the material. So the response exactly mean the understanding of the material, mechanical behavior of the material. So ordinarily, how can we measure the response? So one way to determine the material behavior is to subject those materials with loads. And how can we subject those materials with the load? Then different testing machines are available in our testing laboratories, like universal testing machine, compression testing machine, and different material testing machines equipments are available in the laboratory. So what we normally do, we test that material under the force. So we apply the type of force, because as you have heard and as you have seen the topic, that is the monotonic loading. So there can be non-monotonic loading. I would be discussing the difference between the monotonic and non-monotonic loading as well. So as far as the response is concerned, the basic understanding at this particular stage is that what exactly the response is. The response means the mechanical behavior of the material under the influence of the forces. So that is what the response exactly means here. So next thing is we need to understand the monotonic loading. What exactly the monotonic loading? As far as the word monotonic is concerned, you might have heard that word. The monotonic mean यकसानियत. अगर आप कुछ चीज़ में यकसानियत महसूस हो, आप कहते बड़ी मोनोटोनी हो रही है, आपको एक तरह के शहर में रहते हुए एक तरह के, जैसे अब हमें ये जो कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन के अंदर हैं, तो हम इस मोनोटोनी से हम बेदार हो रहे हैं. ये एक तरह का आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है. यू आर जस्ट लिविंग इन अ होम, यू कैनॉट गो आउट, यू कैनॉट गो टू द मार्केट, यू कैनॉट गो टू द होटल, ईट आउट, डाइन आउट.
सो ये जब सब कार्य काम नहीं हो सकते तो दैट्स कॉल्ड मोनोटोनिक लोडिंग, मोनोटोनिक. सो एज फॉर द मोनोटोनिक लोडिंग इज कंसर्न, मोनोटोनिक लोडिंग मीन कि द टाइप ऑफ लोडिंग देयर इज वन सर्टेन, देयर इज वन, एक तरह का उसके अंदर इन्फ्लुएंस है, एक तरह का उसके अंदर बहाव है इस लोडिंग में. मतलब इट कैन बी अ स्टैटिक लोड इवन इफ द लोड इज डायनेमिक. इवन अगर दी हार्मोनिक लोड है और वो एक ही तरीके की इन्फ्लुएंस में लग रही है तो वो भी एक मोनोटोनी उसके अंदर आ जाती है. जिस तरीके से आगे चल के हम पढ़ेंगे फटीग है या साइक्लिक लोड्स हैं, ठीक है. तो यहाँ इस लेवल के ऊपर अगर आपने मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक का फर्क पढ़ना समझना है तो यहाँ दैट वुड बी मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि मोनोटोनिक वर्ड जो है या मोस्टली स्टैटिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि स्लोली टाइम डिपेंडेंट चीज़ नहीं होगी उस लोड के ऊपर, तो फिर हम उस लोड को कह रहे हैं मोनोटोनिक लोडिंग. तो इसके मुकाबले में जो दूसरी लोडिंग होती है वो साइक्लिक लोडिंग होती है. जो नॉन मोनोटोनिक लोडिंग होगी उसको फिर हम कहते हैं कि वो साइक्लिक लोडिंग है. तो साइक्लिक लोडिंग को भी थोड़ा बहुत हम इंशाल्लाह टच करेंगे, नॉट इन दिस लेक्चर. थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो स्टील है, जैसे हम आज स्टील को देख रहे हैं, तो स्टील के ऊपर अगर हम साइक्लिक लोडिंग लगाएंगे तो वो कैसे होगा. तो मोनोटोनिक वो जो वर्ड है वो यहाँ समझने के लिए इतना काफ़ी है कि मोनोटोनिक जो है वो एक तरह का स्टैटिक लोड है तो हम उसको मोनोटोनिक कहेंगे. तो मटेरियल टेस्ट आर ऑफन क्लासिफाइड एज मोनोटोनिक एज साइक्लिक. जैसे अगर आपने सॉइल में नाम सुना होगा तो वहाँ साइक्लिक टेस्ट भी किए जाते हैं, रिपीटेड लोड उसके ऊपर लगा जाते हैं. मतलब एक लोड आपने जैसे स्टैटिक के अंदर तो आप एक सिंगल लोड लगाते हैं, तो साइक्लिक लोड के अंदर ये होता है कि वो लोड रिपीट करता है. और साइक्लिक का मतलब ये है कि सेम लोड रिपीट करता है. और अगर सेम लोड रिपीट ना कर रहा हो तो फिर वो नॉन मोनोटोनिक हो जाती है, कि जो टाइप ऑफ लोडिंग है वो चेंज हो रही है, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. क्योंकि लोड के साथ तीन चीज़ें एसोसिएटेड है ना, उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन है और उसकी लोकेशन है. ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड 2 किप है, 3 किप है, 4 किप है, 5 किप है, 6 किप है, दिस इज द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग. डायरेक्शन का मतलब ये है कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, राइटवर्ड है, ये डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है. पोजीशन से मुराद ये है कि कभी बीम की एक साइड पे लगी हुई है, कभी बीम के सेंटर पे लगी हुई है. जैसे आपके पास ये मूविंग व्हीकल्स के लोड होते हैं तो ये क्या होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, ये अपनी इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मेरे ख्याल में आप फ़र्क को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक का. देन मोनोटोनिक और साइक्लिक का. साइक्लिक लोड में जो साइकिल होगा वो रिपीटिंग होगा, एक ही तरह का लोडिंग इंटेंसिटी वेरिएशन जो होगी वो सेम होगी और बार बार वही इंटेंसिटी वही वेरिएशन रिपीट हो रही होगी, तब हम उसको कहेंगे कि ये साइक्लिक है. तो साइक्लिक लोडिंग के ऊपर जो है ये फिर वो स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स का एक पूरा कोर्स आ जाता है. अगर आपने मेरे चैनल को और उसको फॉलो कर रहे हैं तो मैं डायनेमिक्स के ऊपर भी मेरे सीरीज ऑफ लेक्चर आ रहे हैं. तो डायनेमिक लोडिंग के ऊपर ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया है, एक पूरी कहानी है, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे. तो इस लेवल के ऊपर आपने अगर मोनोटोनिक को समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि स्टैटिक लोड के अंडर इन्फ्लुएंस पर हम देखेंगे. और थोड़ा बहुत अगर आपने कोर्स कंटेंट को देखा होगा तो सिनेमा उसने वर्ड इम्पैक्ट लोडिंग का भी इस्तेमाल किया है, तो हम वो देखेंगे कि इम्पैक्ट लोडिंग पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा. ठीक है, तो टेंशन एंड कंप्रेशन जो है दे आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिक टेस्ट. तो नॉर्मली आप ये समझ लीजिए जो आप टेंशन कंप्रेशन टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, टेंशन टेस्ट के लिए आपने मोस्टली देखा होगा कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है. कंप्रेशन भी यूनिवर्सल से हो सकता है, और वैसे अगर कंक्रीट को करना है तो फिर उसके लिए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन आती है. और फिर इस तरीके से टेंसाइल ये टेस्ट के लिए जो है कंक्रीट का करना है तो स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट है, एब्रेजन टेस्ट है, ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट हैं. तो यहाँ जो हमारे पास मटेरियल का जो मोस्टली बिहेवियर मैकेनिकल बिहेवियर देखा जाता है, जिस मटेरियल को हम देखने जा रहे हैं ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर, वहाँ हम उसका जो है वो टेंसाइल बिहेवियर देखेंगे और कंप्रेसिव बिहेवियर को देखेंगे. जो ज़्यादा डिफरेंट टाइप के और बिहेवियर हो सकते हैं तो वहाँ वो हमारे लिए इस टाइम मैकेनिक्स सॉलिड में नहीं है. वो फिर जैसे जैसे आप दूसरे कोर्सेज पढ़ते हैं तो वहाँ फिर जाके आप मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ अगर आप ये देख रहे हैं ये जो आपके पास ये रेड सी लाइन जा रही है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मोनोटोनिक लोड. एक स्टैटिक लोड लगा था, लोड इंक्रीज करता हुआ गया, एक मैक्सिमम लोड पर पहुंचा, फिर उसके अंदर यील्डिंग हो गई. ये थोड़ी बहुत इलास्टिक को इलास्टोप्लास्टिक किस्म का बिहेवियर आ रहा है. लेकिन अगर आप ये ब्लैक लाइन इसके अंदर देख रहे हैं जो रिपीटेड हो रही है तो ये एक साइक्लिक लोड है. एक लोड लग रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और फिर वही जो साइकिल है वो रिपीट हो रहा है. अगर आप यहाँ इसको गौर से देखते हैं तो ये जो ब्लैक लाइंस हैं दिस इज सॉर्ट ऑफ साइक्लिक लोड, और जो रेड लाइन है इसको आप मोनोटोनिक लोडिंग कह सकते हैं. ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में इतना आपके लिए समझ लेना काफ़ी है. और अगर आपकी इंटरेस्ट बनती है तो फिर डायनेमिक लोडिंग के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे सीरीज़ ऑफ लेक्चर हैं, आप वो देख सकते हैं. और फिर अगर आपने इसका मैकेनिकल बिहेवियर देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर तो फिर वो हम फिर उस पर अलग भी कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेकिन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर, मैकेनिक्स सॉलिड 1 के अंदर अगर आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में इस लेवल के ऊपर इतना आपके लिए फ़र्क काफ़ी है जानना कि मोनोटोनिक इज अ सॉर्ट ऑफ स्टैटिक लोड. अब ये जो है मैकेनिकल बिहेवियर को मेजर कैसे करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि रिस्पांस क्या है, रिस्पांस हमें पता चला मैकेनिकल बिहेवियर है, मैकेनिकल बिहेवियर रिस्पांस को हमने मेजर कैसे करना है. तो इसकी थोड़ी सी डिस्कशन है कि द यूजुअल प्रोसीजर इज टू प्लेस स्मॉल स्पेसिमेंस होते हैं
छोटे छोटे स्पेसिमेन बना लेते हैं। जैसे अगर आपने कंक्रीट को टेस्ट करना है तो आप पूरे स्ट्रक्चर को जाके नहीं टेस्ट करते, आपने कंक्रीट की अगर कंप्रेशन स्ट्रेंथ लेनी है तो यू जस्ट गो इनटू द लैब एंड प्रिपेयर अ क्यूब और अ सिलेंडर एंड देन यू पुट इट इनटू द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन एंड देन you apply the compressive load, and the moment it crushes, then it records each and every stress and strain diagram sort of thing. And then if you are testing a steel, then you can test a small specimen of that steel. You do not test the whole lot of this steel. ठीक है, तो इस तरीके से जो मटेरियल के जो टेस्ट होते हैं तो यूजुअली यू टेस्ट अ वेरी स्मॉल स्पेसिमन in the testing machine and then apply the load and then measure the resulting deformation. How exactly the strain are happening, उसका टाइप ऑफ फेलियर को आप मेजर कर रहे होते हैं। कंक्रीट को आपने देखा है यूजुअली ब्रिटल होता है, और अगर आपने माइल्ड स्टील लिया हुआ है तो उसके अंदर यील्डिंग आती है, नेकिंग आती है। तो ज़ाहिर है इसी चीज़ को हम आगे चल के अब देख रहे हैं। तो सच एज ए चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन डायमीटर उसके अंदर आ रही है, वी ऑब्जर्व दैट थिंग। सो दैट्स हाउ द रिस्पॉन्स इज मेजर्ड इन दी लेबोरेटरी। So most material testing laboratories are equipped with machines capable of loading specimen in a variety of ways. You can load, अगर आपके पास टेंसाइल टेस्टिंग है तो वो उसमें स्पेसिमेन को लोड करने का अलग तरीका है, कंप्रेशन टेस्टिंग है उसके अंदर अलग तरीका है, अगर आप स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट कर रहे हैं तो उसको लोड करने का अलग तरीका है। तो इंक्लूडिंग बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तो फिर इस तरीके से आप स्टैटिक डायनेमिक दोनों टाइप की लोड को यू कैन अप्लाई दैट सॉर्ट ऑफ लोड। बट दैट इज हाउ what exactly the response is, you now I think know what exactly the monotonic and non-monotonic loadings are, you know, and then you also know what is the mechanical behavior and then how that mechanical behavior is measured. So moving ahead, so as we have discussed here that tensile and compressive tests are mostly done to record, to measure the behavior, mechanical behavior of the material. So this is the tensile testing machine. Okay, this is Zick Royal, it's a German company. So this is one of the very sophisticated machine. There are a lot of other machine as well as if you might have seen the universal testing machine. This is also it's also capable of testing tensile test on that. And this is how a test is measured. If you can see this animation, this particular specimen is being elongated, and you can see the necking phenomena here. Then we'll be discussing inshallah in the later part of this lecture. You can see the diameter is continuously reducing at this particular end, and then ultimately it breaks. So this is how a tensile test is carried out, and then you can do the compression test as well. This is compression test of a concrete cylinder. You can see the brittle failure of this concrete cylinder, and then this is the cube compression test of a cube. So I think you have seen these testing in your civil engineering laboratory here in Khulzar, and this is very common. You can go to the YouTube and you can watch as many videos as possible. There are so many videos on different tests that are being done on different material. So the type of test, you just Google that into the YouTube, you can see the videos, you can have, I mean, bulk of information is available on the Google. So this is just for your information at this particular stage. So how the response is expressed. So now you are measuring the response. So how exactly that will be expressed? So test results generally depend upon the dimension of the specimen being tested, because the type of specimen and the dimension of those specimen will dictate the response of that particular specimen. राइट। सो स्पेसिमेन का जो साइज़ है, डायमेंशंस हैं, उसके ऊपर भी इसका रिस्पांस बिहेव कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, अब हमारे पास जो है वो हम स्ट्रक्चर की कंप्लीट जो है फुल स्केल टेस्टिंग नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात फुल स्केल टेस्टिंग की जाती हैं जहाँ बड़ी लेबॉर्ट्रीज अवेलेबल होती हैं, वहाँ फुल स्केल बीम बनाई जाती हैं और उसको टेस्ट कर ली जाते हैं। और अगर आपने फिर उसके प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, उस पर टेस्ट कर दिए जाते हैं। तो सिंस इट इज़ अनलाइकली दैट वी विल बी डिज़ाइनिंग अ स्ट्रक्चर हैविंग पार्ट्स, तो जाहिर सी बात है अगर आपने स्टील के छोटे छोटे पार्ट्स से तो नहीं बनने, तो ठीक है, तो छोटे पार्ट्स का हम नहीं बनाते, तो वी नीड टू एक्सप्रेस द टेस्ट रिजल्ट इन अ फॉर्म। तो फिर हमने रिजल्ट को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ताकि हमारे एक जनरलाइज उस फॉर्म में हमें मिल जाए, और जो फिर हम जिस तरीके से उस मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाए। तो दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से दैट वी नीड टू एक्सप्रेस द टेस्ट रिजल्ट इन अ फॉर्म दैट कैन बी अप्लाइड टू मेंबर ऑफ एनी साइज। ठीक, तो मेंबर किसी भी साइज़ का, जैसे अगर आपने कंक्रीट का ब्लॉक या कंक्रीट का आपने सिलेंडर बना लिया है, तो आपने तो उसको बनाना है, बीम के अंदर कास्ट करना है, कंक्रीट को आपने स्लैब के अंदर कास्ट करना है, आपने कॉलम फाउंडेशन के अंदर कास्ट करना है। तो फिर वहाँ जो जिस किस्म का लोड लग रहा है, आप उस लोड को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, और आपको जो एक्सप्रेस करना है वो फिर आप उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे ताकि आपका जो वो रिस्पांस आप लोगों को बतला रहे हैं वो रिस्पांस ऐसा हो कि आप अपने दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकें, वेदर यू आर यूजिंग दैट कंक्रीट इन अ बीम और कॉलम और फाउंडेशन इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू आर यूजिंग इट, दैट सो द एक्सप्रेशन ऑफ दैट मेजरमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी sufficient enough that we may be able to utilize those
expression, like usually that expression is in stress strain form, stress strain diagram, and that those diagram can be utilized, can be make use of while designing our own structure. So a simple way to achieve this objective is to convert the test result to the stresses and strain. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये आ जाता है, जो भी आपका टेस्ट रिजल्ट आता है आप उसको स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की फॉर्म में हम उसको दिखा देते हैं। एक वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेन लगा स्ट्रेसेस लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल पे स्ट्रेन लगा देंगे, और इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप मोस्टली आप जो मटेरियल के रिस्पॉन्सेज देखेंगे इन बुक्स, किसी भी बुक्स में आप जाके देखेंगे तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मोस्टली जो है वो मिल रही होंगी। तो टाइप ऑफ लोड जिस तरह का आप लगा रहे हैं, अगर आप एक्सियल स्ट्रेसेस लगा रहे हैं तो एक्सियल स्ट्रेन मिल रहे हैं, अगर आप टॉर्जनल स्ट्रेसेस लगा रहे हैं तो टॉर्जनल, बाद को ट्विस्टिंग मशीन भी है अवेलेबल होती है, तो वहाँ ट्विस्ट के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल जिस टाइप का भी स्ट्रेस है उस टाइप का स्ट्रेस और उस टाइप की स्ट्रेन के रिस्पॉन्सेज को आप एक्सप्रेस कर देते हैं, एंड उस रिस्पॉन्सेज को फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस कैसे की जाएगी? द एक्सियल स्ट्रेसेस सिग्मा इन अ टेस्ट स्पेसिमेन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्सियल लोड P बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। दिस इज द नॉर्मल, आपने पढ़ा है जो स्ट्रेस के हमने शुरू के लेक्चर पढ़े हैं कि अगर आप लोड को एरिया से डिवाइड करते हैं देन यू गेट द स्ट्रेस। लेकिन जो उसमें जो बात मैंने आपको समझाई भी थी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस की, वहाँ ये इस बात को थोड़ा सा हमने दोबारा रिपीट कर दिया है ताकि आपका नॉलेज बाय रिपीटेशन से थोड़ा सा पुख्तगी आ जाए उसके अंदर। सो व्हेन द इनिशियल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन, द स्ट्रेस इज कॉल्ड द नॉमिनल स्ट्रेस। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी नो। सो अदर नेम फॉर दिस नॉमिनल स्ट्रेस आर द कन्वेंशनल स्ट्रेस और द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और फिर अगर आप उसको एक्चुअल स्ट्रेस के ऊपर, एक्चुअल एरिया के ऊपर कर रहे हैं तो फिर वो ट्रू स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। So a more exact value of the axial stress called the true stress can be calculated by using the actual area of the bar at the cross section where failure occur. अब ये हो सकता है कि अगर आपने हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर जिस तरीके से वो उसका एक जो लेटरल डायमेंशन है वो उसकी रिड्यूस हो रही है, एरिया उसका रिड्यूस हो रहा है, तो आप हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर भी एरिया ले लेते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब फेलियर होता है तो उस टाइम पर उसके अंदर मैक्सिमम चेंज इन एरिया आ चुका होता है, तो फिर उस जो फाइनल एरिया है उससे अगर आप डिवाइड करते हैं देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल ट्रू स्ट्रेस। सो सिंस द एक्चुअल एरिया इन अ टेंशन टेस्ट इज ऑलवेज लेस द इनिशियल एरिया, जो एक्चुअल एरिया होगा जाहिर सी बात तक कम होगा। अगर आप यू आर डूइंग द टेंशन टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल एरिया उसके अंदर कम हो जाएगा। द ट्रू स्ट्रेस इज लार्जर देन द नॉमिनल स्ट्रेस, क्योंकि एरिया स्ट्रेस में अगर आप देखते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो एरिया जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो जो चीज़ नीचे होती है अगर आप उसको छोटा करेंगे तो ऊपर वाला रिस्पॉन्स बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, ये तो आपको मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज है आपके पास। तो जैसे जैसे अगर आप उसको इनिशियल एरिया के ऊपर लेकर कर रहे हैं तो फिर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ और होगी, और अगर ट्रू स्ट्रेस के ऊपर लेकर कर रहे हैं तो दैट वुड बी लार्जर देन द इनिशियल स्ट्रेस। सो दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर इनिशियल लेक्चर। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सो आई थिंक यू कैन गो एंड वॉच दैट लेक्चर एंड आई हैव डिस्कस वेरी मच इन डिटेल दिस चेंज इन द एरिया। एंड देन how can we measure the strain? So average axial strain in the test specimen is found by dividing the measure elongation delta, whatever that जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है डेफिनेटली उसके अंदर इलांगेशन आ रही है, तो इसके लिए एक्सटेंसोमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उस इलांगेशन को मेजर करने के लिए। अगर आपने लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए तो एक्सटेंसोमीटर उसके साथ लगा देते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ किस किस्म का है कि ये होता है। ये गेज लेंथ आप समझ लें, स्पेसिमेन है, दिस इज द होल स्पेसिमेन, दिस इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, दिस इज द सेक्शन वेयर ग्रिप, जहाँ आपने सेक्शन को ग्रिप करना है, तो ये वो एरियाज हैं जो ये ग्रिप सेक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द विड्थ ऑफ द ग्रिप सेक्शन एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द शोल्डर, जो इसके शोल्डर ऊपर दोनों के दरमियान होंगे, तो दिस इज द एक्चुअल लेंथ जिसको आप करना चाह रहे हैं। और इसके अंदर फिर वो ये गेज लेंथ होती है, ये जो है इधर यहाँ एक्सटेंसोमीटर लगा दी जाते हैं इस गेज लेंथ के ऊपर, मतलब ये एक एक्सटेंसोमीटर यहाँ लग जाएगा, एक एक्सटेंसोमीटर यहाँ लग जाएगा। अब अगर ये इलांगेट हो रहा है तो दिस एक्सटेंसोमीटर विल रिकॉर्ड ऑल द इलांगेशन दैट वुड बी अकरिंग व्हेन यू विल बी अप्लाइंग द स्ट्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है, देन अगर ये इलांगेट हो रहा है तो डेफिनेटली दिस डायर बिट वुड बी रिड्यूसिंग डाया, तो इसका जो है वो डायर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज हाउ द स्ट्रेन इज मेजर्ड। जो एक्चुअल लेंथ होती है, जैसे आपने पढ़ा है, दिस इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, तो दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। जो स्पेसिमेन की ओरिजिनल लेंथ होगी ये वो ओरिजिनल लेंथ है जो कि आपके पास ये गेज लेंथ है जिसको आप मेजर कर रहे हैं। तो जो इलांगेशन इसके अंदर हो रही है वो इलांगेशन डिवाइडेड बाय दिस गेज लेंथ विल गिव यू द स्ट्रेन एंड दे आर यूजुअली मार्क। अगर आपने टेस्ट किए हैं अभी, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से यकीनन आप लैब नहीं जा पा रहे होंगे, तो अगर आप लैब में जाएंगे तो वेरी इजीली ये स्पेसिमेन किस्म के अवेलेबल होते हैं। यू कैन गेट वन ऑफ दिस स्पेसिमेन एंड यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दैट आई एम टेलिंग यू
फिर जाके आप खुद देख सकते हैं कि प्रॉपरली मार्क्ड होते हैं ये, इसके अंदर गेज लेंथ, ग्रिप्स आप इजीली देख सकते हैं। एल्यूमिनियम के मोस्टली ये इस तरीके से अवेलेबल होते हैं। जो हम स्टील के कर रहे होते हैं वो तो फिर हम नॉर्मल जो रिबार होता है उसको लेकर के करते हैं, और उसके अंदर भी हम आप देखते हैं तो आप मार्क लगा देते हैं चाक की मदद से कि भाई ये दिस इज द गेज लेंथ, एंड देन वी मेजर दैट पर्टिकुलर गेज लेंथ कि हाउ मच elongation is actually occurring in that gauge length. So that's how the test or the stress is calculated, and then in this particular slide you have understood कि किस तरीके से हम strain की भी measurement कर सकते हैं. So if the initial gauge length is used in the calculation, for instance 2 इंच अगर ये आप समझते हैं कि 2 इंच की लेंथ है तो फिर वो इस्तेमाल की जाती है, then the nominal strain is obtained. ठीक है, जो फिर इससे जो strain हो रहा है क्योंकि आप initial लेंथ को ले रहे हैं तो nominal strain आ रहा है. अगर आप स्ट्रेन चूँकि लेंथ उसकी बढ़ रही है तो अगर आप एक्चुअल लेंथ को लेकर चल रहे हैं तो फिर वो जिस तरीके से आपने स्ट्रेस के अंदर देखा था ट्रू स्ट्रेस, तो फिर इस तरीके से यहाँ आप ट्रू स्ट्रेन की टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अब ये हम देखेंगे कि हम कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन नॉर्मली हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर देखते हैं. तो ये हम यकीनन इस चीज़ को हम देखेंगे. सो सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द गेज मार्क इंक्रीजेज एज द टेंसाइल लोड इज अप्लाइड, we can calculate the true strain as well, or the natural strain at any value of the load by using the actual distance between the gauge mark. तो जिस टाइम इंस्टेंट के भी आप चाह रहे हैं तो उस टाइम इंस्टेंट के ऊपर आपको जो स्ट्रेस की वैल्यू के ऊपर आपको ट्रू स्ट्रेन भी मिल सकता है. तो देन यू कैन कैलकुलेट द ट्रू स्ट्रेस, देन यू कैन कैलकुलेट द ट्रू स्ट्रेन एज वेल. ओके, सो इन टेंशन ट्रू स्ट्रेन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नॉमिनल स्ट्रेन. ठीक है, अब ट्रू स्ट्रेन जो होगा चूंकि गेज लेंथ बढ़ गई है, अब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ नीचे है, वो ओरिजिनल लेंथ अगर बढ़ रही है तो फिर ट्रू स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो घट रही होगी, और अगर आपने वहाँ ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू देखा था तो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही होती है. ठीक है, तो ये वो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके समझने की है कि ट्रू स्ट्रेस में एरिया चूंकि नीचे है और एरिया रिड्यूस हो रहा है तो ट्रू स्ट्रेस वुड बी इंक्रीजिंग as in comparison to the actual strain or the actual stress or the nominal stress or the engineering stress. On the contrary, अगर आप स्ट्रेन के अंदर जा रहे हैं तो फिर जो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू होगी दैट वुड बी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज द गेज लेंथ इज इंक्रीजिंग एज एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेन इज दैट द स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, एंड सिंस द ओरिजिनल लेंथ इज डाउनवर्ड और ओरिजिनल लेंथ इज डिक्रीजिंग, सो इन एज अ रिजल्ट फिर ये होगा कि जो स्ट्रेन होगा ट्रू स्ट्रेन होगा दैट वुड बी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. सो फॉर मोस्ट इंजीनियरिंग पर्पजेज जो है वो नॉमिनल स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेन आर एडिक्वेट होते हैं. तो खूब ज़ाहिर सी बात है आप स्पेसिफाई करना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. तो सिंस यू आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेस विद द एक्चुअल एरिया एंड यू आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन विद द इनिशियल एरिया, वहाँ भी इनिशियल एरिया ले रहे हैं और यहाँ इनिशियल लेंथ ले रहे हैं, तो बोथ थिंग जो है वो आपके साथ एनालॉगस चल रही है. एक ही तराजू में आप लेके चल रहे हैं ना, कोई वो नहीं कर रहे कि वहाँ दूसरे टाइप का स्ट्रेस ले रहे हैं या स्ट्रेन डिफरेंट टाइप ले रहे हैं. तो वन टाइप का आप स्ट्रेस लेके चलते हैं तो नॉर्मली जो होती है जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको नजर आती हैं तो नॉमिनल स्ट्रेस एंड नॉमिनल स्ट्रेन उसके अंदर एडिक्वेट होते हैं. अनलेस अदरवाइज जो रिसर्चर है जिसने वो टेस्ट परफॉर्म किया ही स्पेसिफाइज दैट कौन सी स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन उसने लेकर के कैलकुलेशन की है. तो ये मैंने दोबारा आपको बता दिया कि क्या चीज़ है. सो नाउ अब आपको पता चल गया है कि रिस्पांस क्या है, आपको पता चल गया है कि रिस्पांस मैकेनिकल बिहेवियर होता है. मैकेनिकल बिहेवियर को हम मेजर करते हैं, हम उसके लिए टेंसाइल टेस्ट करते हैं या कंप्रेशन टेस्ट करते हैं. हम जस्ट डूइंग अ रिकैप ऑफ ऑल दो स्लाइड जो हमने पीछे पढ़ के गए, और फिर ये टेस्ट करने से करके हमें स्ट्रेस मिलता है, हमें स्ट्रेन मिलता है, हमें डिपेंड कर रहा है स्ट्रेस जो है उसके कौन से एरिया से हम ले रहे हैं, डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन हम उसकी कौन सी लेंथ से ले रहे हैं, वट एवर लेंथ दे रहे हैं. फिर हमने ये कहा कि नहीं भाई हम जो है वो नॉमिनल स्ट्रेस नॉमिनल स्ट्रेन लेके चलेंगे. वंस यू हैव जो है आपके पास डाटा आपने रिसीव कर लिया है, एक्वायर कर लिया है नॉमिनल स्ट्रेस एंड नॉमिनल स्ट्रेन का, देन यू कैन ड्रा द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. एंड so after performing a tension and compression test and determining the stress and strain at various magnitude of the load, definitely as you are increasing the level of stress, the level of strain is changing, and then you are recording each value of stress and each value of strain. Normally जो आजकल की एडवांस मशीनरीज आ गई हैं, जितने जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है, दे आर वेरी मच एडवांस, दे आर वेरी मच कंप्यूटराइज्ड एंड दे themselves रिकॉर्ड ईच एंड एवरी वैल्यूज़. वो किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर यू डिक्टेट आप उसको बता देते हैं कि जो लोड की वेरिएशन है वो कितनी है. वो जाहिर सी बात है आप ये लोड इंक्रीज़ करना है तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ है, तो वो कितने टाइम इंस्टेंट के पास लोड की इंक्रीज़ आ रही है. अगर वो स्ट्रेन कंट्रोल टेस्ट हैं, क्योंकि टेस्ट जो होते हैं वो स्ट्रेस कंट्रोल या स्ट्रेन कंट्रोल होते हैं, तो नॉर्मली जो है वो स्ट्रेन कंट्रोल टेस्ट होते हैं. यू डिक्टेट द स्ट्रेन कि भाई इतने टाइम पर इतना स्ट्रेन उसका बढ़ाओ, इतने टाइम पर इतना, उस स्ट्रेन के लिए फिर वो लोड लगाता रहता है मशीन. ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब आप वो टेस्टिंग करेंगे और जाके इस लेवल के ऊपर तो ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है, और जब आप रिसर्च लेवल के ऊपर आते हैं, अगर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इस किस्म का कोई मैकेनिकल बिहेवियर मटेरियल का आप इंडिजीनियस मटेरियल का टेस्ट करते हैं, लाइक दोज मटेरियल विच आर लोकली अवेलेबल इन योर एरिया,
देन आप उसके लिए फिर ये कि यू विल नो एंड यू विल लर्न ऑल दोस थिंग कि भाई क्या वो टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं जिसके लिए कर रहे हैं। तो कोई टेस्टिंग पैरामीटर को हम नहीं देख रहे, ना ही हम टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह जब मैं आई एम प्लानिंग कि अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, क्योंकि अब ऑलरेडी मैं 2 सब्जेक्ट को मैंने लेकर के चल रहा हूँ, तो ये 2 सब्जेक्ट जब इंशाल्लाह कवर होते हैं तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके लैब जो टेस्ट हैं उसके ऊपर भी आपको इंशाल्लाह गाइड करूँ और उसके ऊपर भी डिमॉन्स्ट्रेशन दूँ, मशीन आपको दिखाऊँ, मशीन कैसे परफॉर्म होती है, टेस्टिंग पैरामीटर हम कैसे करते हैं, जो ASTM है अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मटेरियल है उनके क्या स्टैंडर्ड हैं, जो डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं टेस्टिंग के, वो यकीन उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वो जब इंशाल्लाह ये कोर्स ये दिस इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट, तो व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिकल पोर्शन इंशाल्लाह, सो विल बी आई विल बी इंशाल्लाह आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हेयर कमिंग बैक टू दिस टेस्ट एंड डायग्राम, सो आपको जब ये वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या कंप्यूटर इज रिकॉर्डिंग फॉर यू, देन यू कैन गेट दोज वैल्यूज फ्रॉम द कंप्यूटर, एंड इवन नाउ a days the computer can plot this stress strain diagram for you. So then either you can plot it yourself or you can get it from the computer directly. So such a stress strain diagram is a characteristic of the particular material. जिस मटेरियल का आपने टेस्ट किया है, स्टील का, कंक्रीट का, एल्युमिनियम का, वुड का, तो नॉर्मली ये जो हमारे बड़े कॉमन मटेरियल है वो मैं बार बार इसीलिए उनका नाम लेता हूँ, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल का जब आप कर लेते हैं बीइंग टेस्टेड एंड, तो ये जो आपके पास टेस्ट एंड डायग्राम है, दिस कन्वेज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड द टाइप ऑफ बिहेवियर। जो मैकेनिकल उसका बिहेवियर किस किस्म का होगा। ज़ाहिर सी बात, अगर आपने स्टील को टेंशन में टेस्ट कर रहे हैं तो टेंशन में है, तो आगे चल के मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये बेसिकली वर ओरिजिनेटेड बाय जैकब बर्नौली एंड ही, उसने मरहूम जो थे वो 1656 से 1705 तक थे, एंड वी पोंसलेट 1788 टू 1867। तो इस रेंज के अंदर इन 2 भाइयों ने हमारे जो थे उन्होंने यकीनन वर्कआउट किया था, एंड दे ओरिजिनेटेड दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। एंड अब देख लीजिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की वजह से ये मैकेनिकल बिहेवियर आज जितना भी अराउंड द वर्ल्ड टेस्टिंग हो रही है, वो आप देखेंगे कि ये इन डायग्राम के ज़रिए बताई जा रही है। मतलब मेरी पूरी PhD मैंने सॉइल के ऊपर किया है, वहाँ हमने फाइबर इनफोर्स को टेस्ट किया, तो वहाँ भी ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की क्या वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेस हैं, क्या वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रेन है। सो बैक 3 or 4 centuries बैक दे वर्कड एंड वी आर स्टिल यूटिलाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन इन द नॉलेज। सो आई होप कि अल्लाह करे कि हमारे अंदर भी ये हमने जो बीज बोया है नॉलेज शेयरिंग का, वो इतना फले फूले कि उसमें फिर आप भी फ्यूचर के रिसर्चर बने और आप भी कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करें, ओरिजिनेट करें, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो अब ये हमने देख लिया कि मटेरियल के रिस्पॉन्सेज क्या हैं। दैट वाज ऑल द जनरलाइज्ड डिस्कशन, वी डिडंट स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक मटेरियल कि ये कंक्रीट है या स्टील है या है। अब जाके हमने जनरलाइज्ड डिस्कशन किए। नाउ वी वुड स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील। तो आई थिंक लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, सो दैट हम इसको फिर एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चीज़ को कर लेते हैं, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह।